So why this exercise is important for everyone is because in recent times, in most of the examinations, they have started asking this type of data interpretation only. So even I'll tell you examples. Even if you go to companies like Cell or some other international companies or even UN, so their data interpretation is not like which we do uh, teach in our classes for competitive examinations. तो जैसा कि बैंकिंग या एसएससी या ऐसे जो डीआई आते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं होते। तो अभी जितने भी आपके आने वाले टाइम में फर्दर व्हेन यू विल बी passing your PG programs also, and then you'll be appearing for the test for the company's recruitment. These type of questions will be there, and of course, for entrance part, they have started putting these kind of questions in greater extent. So even I think the IIT Delhi will have similar questions, or all the other IITs will have similar questions in their paper. So let's start with these questions, we're solving these questions one by one. ये 2023 का पेपर है PYQ, and we are solving all the DI of that paper. So once you read this statement, the following figure is produced by National Oceanic and Atmospheric Administration. It shows the extent of global warming in recent years. तो बहुत ध्यान से मतलब you have to read every sentence very minutely with the data, because maybe the question or the comprehension will be based on that particular line or word only. So 2022 was the sixth warmest year on record. This is written here. Global land and ocean surface temperature anomalies. ये anomalies के बारे में बात हो रही है. Anomalies डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू 20th सेंचुरी एवरेज. तो इसमें इन्होंने जैसे ये 0.0 दिख रहा है, तो जीरो में ये प्लस करके फिगर्स है और ये माइनस करके फिगर्स है. तो ये जो बार्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल ईयर्स एनामोलीज है. एनामोलीज, ये एनामोलीज, अगर आप वर्ड अगर मिस कर जाओगे तो प्रॉब्ली विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन. तो ये चेंज है फ्रॉम व्हाट कंपेयर टू द 20th सेंचुरी एवरेज ऑफ. एंड इसमें देखो जैसे यहाँ पे लिखा ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर 1991 टू 2000, मतलब 20th सेंचुरी का दिया हुआ है लैंड सी, बट लैंड एंड सी का यहाँ पे दिया हुआ है. एंड दिस एनोमलीज इज फॉर लैंड एंड ओशन सरफेस. ठीक है. So this is the change which they have represented through the bar graph. और जो ग्राफ है that is extended from 1880 to 2020. ठीक है, but the average is for just 20th century. ठीक है. तो ऐसा मतलब the every sentence that I'm talking might not be useful in the question, but what I'm saying कि how you can gauge the graph. So the first question, पहला question है कि please review the following statements from the figure above. First, according to the graph, the global land and sea surface temperature in 2020 was 14.76 degrees Celsius. The red bars corresponds to above 0 degree temperature. The blue bar represents below 0 degree temperature. Earth's average land and sea surface temperature in 2022 was 0.86 degrees Celsius, 1.55 degree Fahrenheit, above the 20th century average of 13.9 degree Celsius. ठीक है. तो इसमें से बताता है which of the following option is closest to being accurate given the figure above. तो हालांकि मैंने पूरा पढ़ लिया, you don't have to read everything. आप एक एक स्टेटमेंट पे you can go back to the graph and check whether it is right or wrong. So the first statement is, according to the graph, the global land and sea surface temperature in 2022 was 14.76. अभी क्या है कि जो एवरेज है वो 13.9 है, और उसकी एनोमली जो है 2022 की प्लस 0.86. If you add 13.9 plus 0.86, you will be getting 14.76 only. So this seems true. ये हम accurately उससे figure से we can find it correct.
सेकेंड है द रेड बार the red bar correspond to above 0 degree temperature and blue bar represent below 0 degree temperature. अगर आप ग्राफ पे ध्यान दोगे तो रेड और ब्लू जो है वो एक सेकेंड, रेड और ब्लू जो है वो एनामोलीज है, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज, नॉट द नेगेटिव टेम्परेचर एंड पॉजिटिव टेम्परेचर। तो ये द रेड बार रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव चेंज एंड रेड ब्लू बार रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चेंज, नॉट द नेगेटिव टेम्परेचर। तो ये आपका ये स्टेटमेंट गलत है। और एवरेज लैंड एंड सी सर्विस टेम्परेचर इन 2022 वाज 0.8 डिग्री सेल्सियस एबव द 20, ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3, दीज टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन से यहाँ पे क्या होगा आपका डी, ठीक है। अब हो सकता है कि इसी कर्व ग्राफ से आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी हो, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया है, एक ग्राफ से एक ही क्वेश्चन दिया। नाउ दे हैव मूव टू द second graph, or they have given a second question which is based on different type of situation. The following figure from New York Times shows the association between, अब यहाँ से तुम्हें difficulty होगी to understand the graph, पहला वाला still it was easy, but ये थोड़ा complex है। तो association between the changes in, in wealth and changes in food sales across various countries. Note that the changes in wealth is percent change of GDP per capita from 2010 to 2015, ठीक है। And change in fast food sales is percent change in total price paid by consumers from 2010 to 25। अब कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि हम लेते हैं वियतनाम। अब ये रेड डॉट जो रिप्रेजेंट करता है कि लोअर मिडिल इनकम की कंट्री है, और ये जो रेड बार है ये राइट साइड में है, मतलब इस लाइन के वाई एक्सिस जो है उसके राइट साइड में है, विच रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग वेल्थ। और ये जो परसेंटेज फिगर है, अगर आपको दिख रहा होगा, ये +40 +80 और ये फिर 100 होगा, ठीक है। तो अगर वियतनाम को देखते हो तो ये आता है 60% के उस पे, यानी कि वियतनाम में 2010 टू 15 60% का इनकम ग्रोथ हुआ है, मतलब पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुआ है, जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। और चूंकि वेल्थ को ये लोग जीडीपी के चेंज से ही मेजर कर रहे हैं, वेल्थ के चेंज को। और इसी इसी पॉइंट को हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये फूड सेल्स में इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, एंड इट इज बिटवीन अराउंड 80 टू 120। यहाँ 80% है, यहाँ पे +120% है, तो यहाँ करीब 100% होगा। तो फूड सेल्स जो है, फास्ट फूड सेल्स जो है वो 100% से ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको डेटा को रीड करना है, ऑल्दो द क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन वियतनाम, मैंने सिर्फ एग्जांपल लेकर आपको बताया है। तो अब इससे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी मेड कंक्लूसिवली solely based on the figure above। केवल इसी फिगर से, यू डोंट हैव टू गो टू गूगल और फाइंड आउट अदर डेटा, केवल इसी के फिगर से कंक्लूसिवली आप बता सकते हो द प्राइस ऑफ फास्ट फूड इज हायर देन इंडिया देन इन पेरू। ये बिल्कुल नहीं बता सकते, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज जस्ट शोइंग कि हाउ मच पीपल आर स्पेंडिंग ऑन फास्ट फूड। तो फास्ट फूड की प्राइस से का आप बिल्कुल नहीं कंक्लूजन निकाल सकते। विद द एक्सेप्शन ऑफ यूक्रेन, in the lower middle income countries, higher wealth has resulted in higher food sales। बोला कि यूक्रेन के एक्सेप्शन को लेना है, यानी यूक्रेन में जो लोअर मिडिल वाले सारी कंट्री जो रेड से है, तो लोअर मिडिल वाले में वेल्थ डिक्रीज हुआ है, तब भी फास्ट फूड सेल्स जो है वो राइज किया है, मतलब किस लाइन के ऊपर है तो राइज ही किया है। और बाकी जो है हायर वेल्थ हैज रिजल्टेड हायर फूड सेल्स, तो सब जगह तुम देखोगे कि जितना वेल्थ राइज किया है उसी के हिसाब से बढ़ा भी है।
तो दिस कुड बी अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि यूक्रेन में लोअर वेल्थ हैज रिजल्टेड हायर फूड सेल्स, एक यूक्रेन का एक्सेप्शन है। और हालांकि एक्सेप्शन में ये भी हम ला सकते हैं मोरक्को को, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेल्थ, बट स्टिल द फूड सेल्स, फास्ट फूड सेल्स जो है राइज किया है। तो ये अभी कंफ्यूजन में रखो, बट वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट एज, काउंट दिस स्टेटमेंट एज ट्रू। वेल्थ इज हायर इन चाइना देन इंडिया, ये आप बिल्कुल नहीं बता सकते, ऑल्दो आपके दिमाग में ये आता है कि हाँ चाइना इज मोर वेल्दी। यहाँ सिर्फ चेंज इन वेल्थ है। तो दिस पर्टिकुलर ग्राफ, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है सोनली सोनली बेस्ड ऑन दीज फिगर्स, तो चेंज इन वेल्थ, परसेंटेज चेंज इन वेल्थ से हम वेल्थ के बारे में नहीं बता सकते। तो ये इसको आप बिल्कुल कंक्लूड नहीं कर सकते। एंड नन ऑफ द एबव ये बता रहा है, तब तो इसको हमें ले ही लेना चाहिए, बिकॉज बोला है कि विथ द एक्सेप्शन ऑफ यूक्रेन इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हायर वेल्थ हैज रिजल्टेड हायर फूड सेल्स। तो जाहिर सी बात है, ये सारी जो है वो बढ़ी है, एंड दैट्स व्हाई इट रिजल्टेड कि ज्यादा फूड सेल्स हुआ। तो यू कैन टेक दिस स्टेटमेंट एज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हालांकि ये रेड भी हम मान सकते हैं, थोड़ा बढ़ा ही है। किसी ने कुछ डाउट किया, मोरक्को, मोरक्को का कहाँ है? हाँ, मोरक्को का ही बता रहा है कि मोरक्को में वेल्थ नहीं बढ़ा है बट फूड सेल्स बढ़ा है। तो जीरो चेंज को भी हम पॉजिटिव चेंज बना सकते हैं। वेल्थ स्टेगनेंट है, ऑफ कोर्स ऋतिक, वेल्थ स्टेगनेंट है, बट इसको एक्सेप्शन में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नहीं भी चेंज हुआ है, मतलब जीरो चेंज को पॉजिटिव ही मान लो एक तरह से। तो हालांकि ये एक स्टेट, मतलब ये एक इसमें डाइसी पॉइंट है, बट मुझे लगता है कि इसको लेना चाहिए, बिकॉज जीरो भी पॉजिटिव ही कहलाएगा। ठीक है, और तुम छोड़ भी सकते हो, चलो एक मिनट देखते हैं हम इसको आगे। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शन वाली बात कर दी ना कि एक ही एक्सेप्शन है। तो विथ मोरक्को देयर इज टू एक्सेप्शन नाउ, तो नन ऑफ द एबव भी कर सकते हो। 23 बोलता है, सी द 23 says the following table is from the annual status of education report। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस करने से यू विल आल्सो हैव द आइडिया कि हाउ पीपल रिप्रेजेंट्स द डेटा, और अंडरस्टैंडिंग कि डेटा ऐसा हो कि इंफॉर्मेशन के साथ रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ डेटा दे दिए। तो अगर हम ऐसे ग्राफ, कलरफुल ग्राफ बना के भेजते हैं, तो ये एस्थेटिक नहीं है, बट दिस इज द वे कि आप इसी टेबल को एज ए इंफॉर्मेशन भी पिच कर रहे हो। तो अब इसमें देखो ये क्या है, कि परसेंटेज चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल हु कैन एट लीस्ट रीड द स्टैंडर्ड सेकेंड लेवल टेक्स्ट। इसके बाद बोलते हैं, और ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट है 2018 में। कॉलम्स फॉर 2015 and 17 are blank as the regular survey was not conducted in these years. The figure in table A indicates percentage children enrolled in government school who can read at least text of standard 2 level, story level kitab each year. Standard 2 level text is the highest level in the, इनके रीडिंग टूल का ये हाईएस्ट लेवल करके कर दिया। Along the row के along में क्या हो रहा है? The figure in each row shows the percentage children enrolled in the given class in the government school who can read at least standard 2 level text in different years from 2022 to 2018। along a column, ये भी वही बात है, सेम ही चीज है, बट ये इंपॉर्टेंट है, तुम इसको ध्यान दो। along the diagonal the figures along the diagonal shows the particular cohort आप जानते होंगे ना, जैसे आप किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हो तो वहां बोलते हैं कि 2024 कोहर्ट। जैसे आप आईआईटी गांधीनगर में भी जाओगे ना, तो आपका बैच कहलाएगा 2024 कोहर्ट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन द सेम क्लास, सेम बैच, सेम ग्रुप, तो उसको कोहर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल शो करता है particular cohort over the time. For example, blue cells track the cohort of children who were standard 2 in 2012 and had reached 2028 class standard 8 by 2018। तो अब जैसे एग्जाम्पल कैसे है, ये ब्लू कोहर्ट का बताया है, तो तुम ध्यान दो कि जो 2020 2012 में, सॉरी 2012 में जो क्लास यहाँ थी, वही क्लास 2013 में यहाँ पे है, वही क्लास 2014 में यहाँ है,
ये सर्वे हुआ नहीं। वही क्लास 16 में यहाँ पे है, इन स्टैंडर्ड 6, और वही क्लास 18 में यहाँ पे है इन स्टैंडर्ड 8। तो ये जो डायगोनल दिखा रहा है ना, दिस रिप्रेजेंट्स की सेम क्लास का क्या ग्रोथ हुआ, डायगोनल जो है, बिकॉज द डायगोनल एक्चुअली कोई भी यहाँ पे लो, तो यही बच्चे जो है नेक्स्ट ईयर अगली क्लास में जाएंगे, और यही बच्चे नेक्स्ट ईयर अगली क्लास में जाएंगे। तो डायगोनली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज और कैपेसिटी इंक्रीज इन द सेम कोहॉर्ट। तो अब यहाँ पे अगर लिखता है, क्वेश्चन देता है कि बेस्ड ऑन द टाइम टेबल्स, बेस्ड ऑन द टेबल नोट्स एबव, if we have to track the progress of a particular group of children, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ने साफ साफ बोल दिया है कि इन्हीं का प्रोग्रेस करना है ओवर द टाइम in terms of their ability to at least read standard 2 level text. We could compare the number along which of the following dimension. तो तुम पहले ही समझ गए कि ये डायगोनल वाला ही होगा, तो along the diagonal ही होना चाहिए, बिकॉज एक ही ग्रुप के चेंज की बात की जा रही है। आई थिंक ये लास्ट है। The following table appeared with the op-ed article in the Indian Express on January 16, 2021। ये देखो, ये कोविड रिलेटेड डेटा है। टेबल 1 says कोविड इन्फेक्शन एंड डेथ पर मिलियन। तो 30th जून, ठीक है, केस पर मिलियन इतना, 30th सितंबर इतना, 11 जनवरी इतना, और डेथ इतना इतना हुआ। और ये कॉमुलेटिव डेटा नहीं है, वो उस दिन का ही डेटा है, ठीक है। अ, तो वेस्टर्न यूरोप, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन यही है कि इसका तो इसी दिन का डेटा है, बट ये सारे डेटे जो है ये कॉमुलेटिव डेटा लग रहा है, मतलब कि टोटल इन्फेक्शन एट दैट टाइम लग रहा है। क्योंकि अगर 1379 को कॉमुलेटिव ले लेगी सब मिला के, तो हाउ कैन बी, मतलब हाउ कैन दिस डेटा बी स्मॉलर देन द वेरियस कॉन्टिनेंटल और कंट्रीज डेटा। तो ये पर डे का है, बट ये कॉमुलेटिव लगता है, लग रहा है। इंडिया के केस में भी ये कॉमुलेटिव होना चाहिए आइडियली, ठीक है। और ये डेथ जो है वो उसी दिन के डेथ की बात हो रही है कि उसी दिन कितने डेथ हुए, ना कि कम्युलेटिव। अब इसमें दो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द टेबल अबव। द नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया एज ऑफ 30th जून वाज 13 मिलियंस, ठीक है। इन चाइना द प्रोपोर्शन ऑफ डेथ एज अ शेयर ऑफ केसेस रिड्यूस्ड ओवर टाइम। अब ये है कि चाइना में 59, 63, 67, ये कॉमुलेटिव अगर हम ले रहे हैं, तो डेथ जो है वो कम होता जा रहा है पर डे के हिसाब से। तो ये तो फिर भी एक्यूरेट हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ ही रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में, बट नंबर ऑफ डेथ इज स्टैग्नेंट, तो वो कम नहीं हो रहा है, बट परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है। और पहला वाला जो है वो हम यहाँ से कभी भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि अगर इतने डेथ हुए हैं, तो 30th जून तक 13 मिलियन डेथ हो चुके होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस टेबल से हमें नहीं पता चलता है। तो इस केस में हमारे पास स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यही करना पड़ेगा। अच्छा, एक और है, मतलब 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। दिस कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ओवर योर स्कोर, फाइनल स्कोर, क्योंकि अगर टेस्ट स्कोर है और इंटरव्यू स्कोर दोनों मिलाकर अगर फाइनल रैंकिंग बनाएंगे, तो टेस्ट में ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और दे माइट इंक्रीज द नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस आल्सो, इसलिए जितने भी पेपर्स है ना उसकी तैयारी कर लो। मतलब पास्ट ईयर पेपर्स कर लो, जैसे ये पेपर भी तुम लोग कर लोगे तो बेटर रहेगा। टेस्ट से सॉर्ट करके, हाँ, टेस्ट से सॉर्ट करके इंटरव्यू होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि दे विल नॉट गिव यू एनी चांस टू प्रिपेयर फॉर इट। तो इसलिए जितना हो सके पहले से ही प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि ऑनलाइन टेस्ट था तो तुम्हें एक हफ्ते मिल जाते थे अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए,
but you have to now you have to assume that you will be passing the test for interviews. हालांकि ऐसा होता नहीं है। इन जनरल जैसे मान लो कि सीट से 3 गुना या 4 गुना लोगों को ही वो लोग वो करते हैं। ठीक है। The following scatter diagram from our world in data plots the female labor force participation rate in 2020 against that 1980। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि these particular DI questions also give you some general knowledge fact और debate, मतलब ऐसा fact जो इन जनरल लोगों को पता नहीं रहता है। जैसे तुम आज किसी भी लोगों से किसी से भी पूछोगे ना कि women की पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी 1918 से 1980 से 2020 ही मान लो तक बढ़ी है कि घटी है। एवरीबॉडी विल से कि बढ़ी है, क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन क्लासेस हैज इंक्रीज, परसेंटेज कंपनी की हायरिंग भी बढ़ रही है, कई सारी तरह के लीवरेज भी दिए जा रहे हैं, बट स्टिल जो पार्टिसिपेशन है इन परसेंटेज पार्टिसिपेशन वो बहुत डिक्रीज हुआ है। तो जब आप उसके डिटेल में जाओगे, सोशियोलॉजी अगर आपने कभी पढ़ा है तो उसमें जरूर इसको पढ़ा होगा, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यहाँ पे वही चीज है कि वेरियस कंट्री की 1980 और 2020 का पार्टिसिपेशन रेट इन परसेंटेज लिखा हुआ है। नोट दैट द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट corresponds टू द प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज में या फ्रैक्शन में दिया रहेगा, ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन एज 15 एंड, मतलब जितनी फीमेल पॉपुलेशन है उसके परसेंटेज में 15 या ओल्डर इज इकोनॉमिकली एक्टिव, आई रिपोर्टेड एज वर्किंग इन रिसेंट पीरियड। ठीक है, उस पीरियड में वर्किंग थी। The female labor forces participation rate, the female labor force participation rate corresponds to the proportion of female population। ये वही चीज रिपीट किया हुआ है। ठीक है, ये जैसे कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज, बट जो भी कंट्री इस कलर में है वो अफ्रीका के हैं, इस कलर में वो एशिया के हैं। तो इस तरह के मतलब एक ही इसी डेटा से दे कुड हैव मेक मल्टीपल क्वेश्चंस, बट इसमें जैसे जैट में इसी डेटा से तो 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, बट इसमें इन्होंने प्रोबब्ली सबसे एक बनाया, तो इससे भी एक ही बनाया होगा। तो हम लोग सीधा सीधा पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following cannot be inferred just based on the above scattered? केवल इसी प्लॉट को, मतलब अलग से आपको कोई डेटा नहीं लेना है और कोई आपको डेटा पता है उसको भी यूज नहीं करना है, इसी ग्राफ से आपको बताना है। So female labor force participation rate improved in Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh between 1980 to 2020, but not in India। अब इसको हम कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे कि ग्राफ पे आते हैं, हमें एग्जांपल पहले देख लेना चाहिए था। चलो हम ऐसे ही पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश था तो इनको देखते हैं पहले। ये है देखो पाकिस्तान, इनका जो इधर है वाई एक्सिस वाला है वो 1980 का है, तो इसमें देखो ये तो बहुत 10% से भी कम है, पर 2020 में इट इज मोर देन 22%, ऑफ कोर्स इंप्रूव हुआ है। बांग्लादेश का देखो ये तो बिल्कुल और भी 5% से भी कम लग रहा है, बट इट हैज बीन इंक्रीज टू 38%, तो ये भी है। और श्रीलंका का भी देखो ये 20% पहले था और नाउ इट इज मोर देन 25-30%, मतलब नियर 40% है। बट इंडिया के केस में क्या है, तुम देखते हो कि इंडिया जो था उस टाइम पे इट वाज अराउंड या मोर देन 35 या 35% के पास था, बट नाउ इट इज लेस देन 30, क्योंकि ये मिड पॉइंट 30 होगा, तो इंडिया का डिक्रीज हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जो पार्टिसिपेशन रेट है वो इम्प्रूव किया है इन सारी कंट्री में, बट इंडिया के लिए नहीं। इन इंडिया नंबर ऑफ फीमेल्स इन द लेबर फोर्स इंक्रीज बिटवीन 1980 टू 2020। ये देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इंडिया में लेबर फोर्स इंक्रीज किया है 1980 टू 2020 नंबर्स के बारे में।
अब इस समय जो पॉपुलेशन होगी, ऑफ कोर्स इस समय उससे कुछ टाइम ज्यादा होगी, तो इनका जो 35% है और इसका जो 30, अराउंड 30 से भी जो कम परसेंट है, वो ऑफ कोर्स बड़ा होगा। बट फ्रॉम दिस ग्राफ, सोनली लुकिंग इनटू दिस ग्राफ, वी कैन नॉट से, लेकिन इसी ग्राफ में एक यहाँ भी देखो, यहाँ पे एक एक स्मॉल पार्ट है कि जो बड़ी सर्किल है वो 600 मिलियन को रिप्रेजेंट करती है। तो करंट पॉपुलेशन है, प्रीवियस पॉपुलेशन कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस पॉपुलेशन का क्या है? तो प्रीवियस पॉपुलेशन पता नहीं चलेगा, मतलब इफ यू कैंट सी द चेंज इन पॉपुलेशन यू कैन एक्चुअली नॉट टेल दिस। बट ये स्टेटमेंट अदरवाइज सही है। ये स्टेटमेंट की जो नंबर ऑफ फीमेल्स इन लेबर फोर्स इंक्रीज की है, ये सही है। प्रोपोर्शन डिक्रीज किया है, दिस ग्राफ इज सेलिंग, बट ये सही है। बट हम यहाँ इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि जस्ट बेस्ड ऑन द एबव स्कैटर्ड प्लॉट से ही आपको बताना है। क्योंकि यहाँ जो पॉपुलेशन का जो वो दिया हुआ है, ये सर्कल साइज रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, ठीक है। छोटा सर्कल साइज जो है इस लेंथ का 200 मिलियन, और बड़ा वाला जो है वो 500 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, 600 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। बट हमें ये कैसे चलेगा कि 80 में इट वाज लेस देन दिस, है ना, कि ऐसा रहता है कि 80 में इतना ही बड़ा है, तो अगर उस हिसाब से और कितना है तभी तो बता पाएंगे ना। तो इस स्टेटमेंट को हमें इस ग्राफ से हम वी कैन नॉट वेरीफाई, तो इसको कैन नॉट कर दो अभी फिलहाल। ईरान, अच्छा कंफ्यूजन रहेगा तो बाकी दोनों में भी कोई कंफ्यूजन होगा ना, तब हम इसको सही भी मान सकते हैं। बट ऐसे तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये एक स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट है। ईरान डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी चेंज और अ वेरी स्मॉल चेंज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो ईरान वाले पे जाया जाए, देखा जाए उनका परसेंटेज कहाँ पे है दोनों टाइम मिलाकर। यू सी ईरान, ईरान कहाँ पे है, ईरान का पॉइंट है यहाँ पे, ईरान इज हियर। तो ये बेसिकली डायगोनल भी जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चेंज नहीं है। क्योंकि ये डायगोनल जो है 20, देखो ये 20 20 को काटता है, 40 40 को काटता है, तो डायगोनल जो है इक्वलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ईरान जो है इसी डायगोनल पे है, यानी कि इसका नहीं चेंज हुआ है पार्टिसिपेशन रेट में, ठीक है। और पार्टिसिपेशन रेट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयड, ये तुम्हें ध्यान रखना है, बट यहाँ पूछा है रेट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट है डी, बिटवीन 1980 टू 2020 इन टर्म ऑफ फीमेल labor force participation, the countries below the diagonal have improved and those above the diagonal has worsened. तो अगर आप मैथ पहले से पढ़े होते या इस तरह क्वेश्चन कभी जानते होते तो आप बोलते कि हाँ ये तो हम बता ही सकते हैं। बट यहाँ पे तो मैच करा सकते हो कि जो भी कंट्री डायगोनल के ऊपर है वो एक्चुअली दे कुड नॉट इम्प्रूव और डिक्रीज ही हुआ है। तो डायगोनल के ऊपर जैसे इंडिया है, टर्की है, देखो इनका इधर में 42% है बट इधर में 30 के आसपास है। जो भी डायगोनल के ऊपर है ना, इवन विथ हाई परसेंटेज रेट 80 के आसपास है, और इनका यहाँ पे 60 ही हो गया, तो डायगोनल के ऊपर वाले में वर्सन, मतलब खराब हुआ है, और डायगोनल के नीचे वाले में सब बढ़ा है। जैसे मैक्सिको ले लो, तो यहाँ पे 40 के नीचे और यहाँ 40 के ऊपर, बिकॉज ये लाइन से नीचे है। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है विद दिस ग्राफ, और इसको हमें फॉल्स लेना पड़ेगा, बट ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, हर पेपर में ही मैंने देखा है। तो आगे अब बाकी के दो पेपर्स के लिए आप खुद से करोगे पहले, और रेगुलर डेज में हम इसको करवा देंगे, कवर करवा देंगे, ठीक है। तो आज यही वाला पेपर बस इतना ही करते हैं इसके उसमें।